سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج جمعہ کا تو ڈیفینیٹلی دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے اور اسلامک کیلنڈر میں یہ 7واں مہینہ مانا جاتا ہے اور اس مہینے کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ حالانکہ اسلامی کیلنڈر میں دیکھیں تو 4 مہینے ایسے ہیں جن کو کافی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، جس میں ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے یا محرم الحرام ہے اور رجب المبارک ہے۔ اور چاروں جو مہینے ہیں ان کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے، ایک خاصیت، ایک اہمیت ہے، ایک عزت ہے۔ اور اگر ہم اس کرنٹ مہینے کی بھی بات کریں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کی شادی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے اور 13 رجب آنے والا ہے، اور اس موقع پر پوری دنیا میں جو ہے اس حوالے سے تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس مہینے کو جو ہے ایک عزت کے ساتھ جو ہے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم رجب کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ عزت دینا، عزت کرنا، اور اسی عزت اور احترام کا حامل یہ مہینہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے فیملی سسٹم کی بات کی، اسلام میں سب سے پہلے عزت اور احترام آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملت سے ہو، کسی بھی شکل کا ہو، کسی بھی صورت کا ہو، اس کے لیے عزت اور احترام کرنا ایک مسلمان کا سب سے بڑا فرض بنتا ہے۔ اور اگر اس کی تعلیمات کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑی جو درسگاہ ہے ایک انسان کے لیے وہ اس کا گھر ہی رہتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے فیملی سسٹم کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اولین فرض یہ والدین کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح کی تربیت دے کہ جب وہ سماج میں نکلے تو وہ اسی عزت اور احترام کے ساتھ ہر ایک شخص کو دیکھے، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے کا رہنے والا ہو۔ یہ سب سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم مذہب کے ساتھ اس فیملی سسٹم کو جوڑتے ہیں۔ اور خاص طور پر آپ جتنی بھی تعلیمات اسلام کے حوالے سے دیکھیں اس میں ہمیشہ اس بات کا ضرور خیال رکھا گیا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور بچے جو ہے ان کو ایک بہترین تربیت دی جائے اور ان سے پیار کیا جائے، ان کو محبت کے اسلوب سکھایا جائے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کے نشو و نما کو آنے والے وقت میں بہترین بنا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسلامک سسٹم میں، فیملی سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیزیں ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جب ہم عزت اور احترام کی بات کرتے ہیں تو ایک بچے کو پہلے سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بڑے بھائیوں کی، بہنوں کی، یا جو باقی ہمسایہ ہیں یا سوسائٹی کا کوئی بھی شخص ہو، اس کی کس طرح سے عزت کر سکتا ہے، کس طرح سے اس کا احترام کرنا ہے، کس طرح سے اس کی بات کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل آوری کرنی ہے۔ یہ اسلام مذہب میں سب سے پہلے ایک انسان کو سکھایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نظام کی بات کریں، ایک اسلامک نظام جو ہوتا ہے ایک فیملی کا، اس نظام کو کیسے چلایا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے مرد کو یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو ایک بہتر طریقے سے اس کی پرورش کرے، وہاں پہ جو ضروریات ہیں اس گھر کی سبھی ضروریات کو حلال طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے، ایک حلال رزق کمانے کا ذریعہ آپٹ کرے اور اسی کی تربیت وہ اپنی فیملی کو بھی دے۔ وہیں پہ اگر خواتین کی بات دیکھیں تو جو گھر کا نظام ہوتا ہے، اندرونی نظام ہوتا ہے، تو خواتین کی سب سے بڑی وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کرے، پرامن رکھنے کی کوشش کرے، اور جو گھر میں بچے ہیں ان کو بہترین تربیت دینی معاملات کے حوالے سے دے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشنل سسٹم ہمارے یہاں پہ درسگاہیں ہیں، مدرسے ہیں، اسکولز ہیں، جہاں پہ ایک بچہ جو ہے اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن ایک سوشل تعلیم جو ہوتی ہے، جو ایک سماجی جو ایک تربیت ہوتی ہے، وہ ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ماں ہی اپنے بچے کے پورے زندگی کے نشو و نما کو شروعات ہی سالوں میں بناتی ہے۔ تو یہ کچھ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ایک اسلامی نظام میں ایک فیملی کے حوالے سے دی گئی ہیں، چاہے وہ گھر کے بزرگ حضرات ہوں یا اس بچے کے والدین ہوں، کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح سے سنبھالے، اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کرے، اور خاص طور پر
अपने आप की सही इस्लाह किस तरह से करे ताकि उसका जो एक खूबसूरत असर जो है पूरे घर के माहौल तक वो पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे जब हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि अगर हमें सोसाइटी को, अगर हमें समाज को बेहतर बनाना है, उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हम अपने घर के निज़ाम को बेहतर बनाए, अपने घर के जो फरीद है उन सभी को एक बेहतर जिंदगी के हामिल बनाए, उनको एक सही तरबियत दें, दीनी दायरे के अंदर उनको हर एक चीज समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है, हलाल और हराम में क्या फर्क है, जुल्म और जाती और किसी पर रहम करना इसमें कितनी फर्क है, और अल्लाह के नजदीक किस तरह से पहुंचना चाहिए। ये सभी जो तरबियतें हैं, ये सभी जो तालीमात है एक घर के अंदर ही दी जाती हैं। तभी जाके जब एक इंसान अपने घर से बाहर कदम रखता है तो वो समाज में एक इंसान नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान होकर बाहर निकलता है, और जिसका सबसे पहला जो मजहब है, जो उसका एक फर्ज है वो इंसानियत होता है, और वो उसी इंसानियत की एक राह पे चलने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात करें तो ये एक अमन व अमान का मजहब है, सलामती का मजहब है। जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले हमारे अपनी जो गुफ्तगू है, या अगर वो मुख्तसरन भी बात हो, लेकिन बातचीत सलाम से शुरू होती है, एक दुआ से शुरू होती है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सलामती चाहता है, और ये सलाम का एक सबसे बड़ा एक बेहतरीन जरिया होता है। तो हर एक मुसलमान यही चाहता है कि जो उसके गर्दनवा में हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी शक्ल सूरत से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, वो हमेशा उसकी सलामती ही चाहता है, और सबसे पहले वो उसके लिए सलाम बजा लाता है। तो ये एक इस्लामिक ठीक है मीर उमर, वहीं बड़गाम से नूरुल अमीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, जानना चाहेंगे आपके मुताबिक इस्लाम का खानदानी निज़ाम क्या है, क्योंकि खासतौर पर जब भी जुम्मे की नमाज की अदायगी की जाती है उसमें ये जिक्रात की जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को दीनी तालीमात देने की कोशिश की जाती है। जी सदब, अगर हम बात करेंगे जो बेसिक चीज है, जो पूरी कायनात का एक उसूल है, वो है ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत। इंसानियत का दर्स जो है वो घर से ही शुरू होता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसको ऐसी तरबियत दी जाती है, यानी कि ऐसी तालीमात दी जाती हैं जिससे उसमें एक शऊर आ जाता है, यानी कि बड़ों के साथ कैसे बात करे, छोटों के साथ कैसे बात करे, औरतों की कैसी इज्जत करे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो घर का एक माहौल होता है, जो घर में एक माहौल बनाया जाता है, उस पर अगर हम इस्लाम की नजर से देखेंगे तो इस्लाम जो है, इस्लाम कहता है कि एक इंसान की जो तरबियत है वो घर से शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिक चीज यही है, जब एक इंसान खुद से चीजें जो है अच्छे करने का जो वो हौसला रखेगा या वो अच्छी चीजें अपने से शुरू करेगा, तो ये जेन्युइन सी बात है कि उसके अच्छा करने से, उसके उन क्वालिटीज की वजह से जो है वो समाज में भी उन क्वालिटीज को जो है रोशन कर सकता है, उसको जो है बहुत सारे लोग भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब एक अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर हम बात करेंगे कि घर से ही जो है चीजों को अगर शुरुआत की जाए, अच्छी चीजों के करने की शुरुआत की जाए, तो ये इस्लाम का दर्स है। इस्लाम भी यही कहता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका माँ बाप जो परवरिश करता है और उसके जहन की जो नशोनुमा होती है उसको डेवलप करने की जो उनके पास सलाहियत होती है माँ बाप के पास, वो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर और इस्लाम के उसूल के तहत अगर उसकी डेवलपमेंट करेगा, उसकी जो है परवरिश करेगा, तो ये ओवरऑल एक समाज की फिर बाद में परवरिश हो जाती है। क्योंकि इंसान बचपन से ही जब अच्छे वैल्यूज अपने आप में लाएगा, अच्छे मॉरल्स अपने आप में लाएगा, तहजीब उसमें आ जाएगी, और जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनके बारे में उसको इस्लाम के नजर से जब उसको उनके बारे में पता होगा, तो ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि वो एक टीचर बन सकता है, वो उसके पास जो नॉलेज होगी, उसके पास जो तहजीब तमद्दुन होगा उसका, या उसका जो एटीट्यूड होगा सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को मुतासिर कर सकता है, और डेवलपमेंट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि समाज में हो सकती है। और अगर हम बेसिक चीज कहेंगे, आजकल के दौर में खासतौर पर नौजवानों की जब बात आती है तो नौजवानों को जो, अगर हम जुम्मे की बात करेंगे, नौजवानों को ही ज्यादा क्यों यहाँ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि ये जो मॉरल्स है, ये जो मॉरल वैल्यूज है, या जो डेवलपमेंट है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, तो उस चीज पर इसलिए नजर डाली जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो गैप बनी हुई है उस गैप को फिल किया जाए, ताकि जो एक मजहब सिखाता है, एक मजहब का जो
जो एक इंसानियत की तरफ जो रुझान है वो इन नौजवानों में डाला जाए। और अगर एक बार जो है नौजवानों में वो रुझान जाएगा जो हर कोई मजहब यहाँ पर कहता है, ह्यूमैनिटी का दर्ज देता है, इज्जत का दर्ज देता है, और उनके साथ कैसे सलूक किया जाए, माँ बाप के साथ कैसे सलूक किया जाए, सोसाइटी में कैसे चला जाए, तो ओवरऑल हर कोई मजहब जो है इस चीज पे फोकस करता है। क्योंकि अगर नौजवान इस चीज को अपने आप में अडॉप्ट कर लेगा तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस समाज, पूरी समाज में, सोसाइटी में जो है तब्दीली आ सकती है। और अगर हम आज के सवाल की बात करेंगे तो बेसिक सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है एक खानदान, एक फैमिली से जब अच्छी सोच वाले जो इंसान निकलेंगे, इंडिविजुअल निकलेंगे, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब उनमें डेवलपमेंट होगी, जब उनमें मॉरल वैल्यूज अच्छे होंगे, अच्छी तरबियत उनकी होगी, तो वो पूरी समाज की तरबियत वैसे हो सकती है। और इस्लाम और बाकी जो धर्म है वो भी इसी चीज पर फोकस करते हैं कि जो डेवलपमेंट है, खासतौर पर बचपन से लेकर जो जवानी तक डेवलपमेंट होती है, उनमें जो है ज्यादातर ये मॉरल वैल्यूज उनमें जो है डेवलप हो जाने चाहिए, उनकी तालीमात उनको देनी चाहिए और दर्ज देना चाहिए नौजवानों को, औरतों को, ख्वातीन को, ताकि जो इंसानियत का पैगाम है, जो तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि जो भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, और साथ साथ में सब लोग जो है मिलजुल कर रहने चाहिए और सब एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक से रहने चाहिए, तो फिर बाद में हम कह सकते हैं कि ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है। जी ठीक है नूर, मेरा ये भी जानना चाहेंगे जुम्मे की नमाज किस किस पर फर्ज है और किसी इसकी अदायगी करना बेहद जरूरी होता है और कितना सवाब इसका मिलता है नमाज की अदायगी का? देखिए, जुमा की नमाज हर एक नमाजों की तरह फर्ज है एक इंसान पे, इसमें कोई शक नहीं। अगर एक मुसलमान है तो हमारी पांचों जो औकात की जो नमाजें हैं एक मुसलमान पे फर्ज बनती है। और जुमा का मकसद यही होता है कि जहाँ पे हम एक बड़ी जमात को जो है खिताब करते हैं, क्योंकि जुमा कहीं न कहीं पे जमात के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो उस वक्त की जमात होती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम जुमा की बात करते हैं तो इस दिन बड़ी जमात में जो है लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, और इसकी तारीफें जितनी भी की जा सकती हैं वो बिल्कुल कम है। क्योंकि अगर हम इस्लामिक निज़ाम में देखें तो जुम्मत मुबारक सभी दिनों का जो है सरदार माना जाता है, और मग़फ़िरत के सारे दरवाजे खुले रहते हैं, और इंसान एक ज्यादा टाइम जो है मस्जिद में सर्व करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी इबादत के हवाले से बात करे या अपनी मग़फ़िरत के हवाले से बात करे, तो वक्त जो अपना उसका ज्यादा होता है। खासतौर पर जुमा के रोज वो जो है नमाज के साथ ही उसका सर्व करता है और मस्जिद शरीफ में ही सर्व करने की वो कोशिश करता है। क्योंकि एक हफ्ते जब इंसान अपनी जिंदगी में काविशें करता है, काम करता है, कहीं ना कहीं पे जरूर वो गुनाहों का भी उसमें हामिल हो जाता है, कुछ लफ्ज़ें जरूर हो जाती हैं, जिसकी मग़फ़िरत होना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। और जुमात मुबारक एक ऐसा मुबारक दिन रहता है जिसमें उसको एक बड़ा मौका मिलता है, जब उसके सामने इमाम जो होता है वो खुतबा देता है, वो इस्लाम के हवाले से मालूमात उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, दर्स देने की कोशिश करता है। उससे जब दिल को उसका असर पड़ जाता है तो इंसान का जो एक सख्त दिल जो होता है वो रंज हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं पे अपनी कारकर्दगी पे कहीं ना कहीं पे अफसोस तो जरूर होता है। और अल्लाह ताला को एक इंसान की जो एक नरमी है वो काफी ज्यादा पसंद है, और जब एक इंसान मस्जिद शरीफ में अपना सर झुकाता है अल्लाह की बारगाह में और मगफिरत मांगता है, तो उसकी जो अजमत है अल्लाह ताला की, वो उस रोज जो है उसकी उन गलतियों को माफ कर देता है, उनके गुनाहों को माफ कर देता है। तो जुमा की जितनी भी आप तारीफ करने की कोशिश करें वो बिल्कुल जबान से तो पूरी तरह से जाहिर हम इजहार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अल्लाह ताला ने जुमातुल मुबारक एक मुसलमान के लिए एक ऐसा मौका फराहम किया है जिसमें वो अपने एक हफ्ते की जितनी भी उसकी गलतियां हैं उनके लिए वो बख्शिश मांग सकता है, और साथ साथ अपनी रूह के साथ साथ जो अपना जिस्म का एक नशो नुमा होता है, जो एक जहन की जो एक सलाहियत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर पाता है। क्योंकि जिस तरह से हर जुमा पे जो खतीब होते हैं, जो मौलाना होते हैं, जो इमाम साहिबान होते हैं, वो जब इस्लाम के हवाले से दर्स देते हैं तो वो कोशिश यही की जाती है कि एक इंसान की सही तरीके से इस्लाह की जाए।
अगर वो कहीं ना कहीं पे इन पिछले 6 दिनों में भटक गया था अपने रास्ते से, लेकिन जुमातुल मुबारक के दिन जब वो खुतबा सुनता है, मस्जिद शरीफ में अपना वक्त सर्व करता है, तो उसकी फिर से इस्लाह हो जाती है, उसकी रूह जो है फिर से ताज़ा हो जाती है और फिर से वो एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश भी करता है और पुरअज़्म बन जाता है। तो जुमा एक ऐसी दिन है, एक ऐसा मौका है एक इंसान के लिए जिस दिन वो अपने आप को फिर से एक बेहतर मुसलमान बना सकता है, एक बेहतर इंसान समाज के लिए बना सकता है। और उसमें अक्सर हमें यही देखने को मिला है कि जो इमाम होते हैं या खतीब साहिबान होते हैं, जब वो अपना खुतबा पेश करते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि इस्लामी दायरे के अंदर रह के कि वो समाज की उन बुराइयों को भी आइडेंटिफाई कर पाए और लोगों को इस्लाह करने की कोशिश करे कि वो इन बुराइयों से कैसे बच सकते हैं, एक बेहतरीन मुसलमान कैसे बच सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि जुमातुल मुबारक के बारे में जितनी भी हम बात करने की कोशिश करें वो बिल्कुल मुख्तसर होगी, वो बहुत कम होगी, लेकिन अगर इसकी अजमत बयान करने के लिए हम बैठे तो इसके लिए बहुत लंबा एक वक्त होना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हमारे लिए एक मौका अल्लाह ताला फराहम करता है जुमातुल मुबारक के हवाले से, उस मौके को हमें पूरी तरह से अल्लाह की राह में सर्व करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, हमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, इंसानियत के तौर पर भी, एक मुसलमान होने के तौर पर। जी बिल्कुल। नूर, अगर किसी भी वजह से कोई शख्स जुमे के रोज नमाज की अदायगी नहीं कर पाता है या वो अपने किसी काम को तरजीह पर रखकर नमाज छोड़ देता है, ऐसे में क्या जिक्र उसके लिए दीनी तालीमात में किया गया है? जी सदफ, अगर हम बात करेंगे ये बाज़ाब्ता वाजिया है और हदीस में ये कहा गया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी इंसान को मुसलसल 3 जुमे रद्द होते हैं, यानी कि वो नहीं पढ़ पाता है किसी भी वजूहात से, तो उनको जो है कलिमा तौबा वापस पढ़ना है। यानी कि उनको फिर 3 जुमे अगर मुसलसल जो है छूट जाते हैं किसी से, अगर कोई जानबूझ कर छोड़ देता है तो अपने काम में मसरूफ रहता है लेकिन जुमे की नमाज अदा नहीं करता है, तो उनको कलिमा तौबा अब नए से अदा करना है। साथ साथ अगर हम देखेंगे, क्योंकि जुम्मे के दिन अगर हम बात करेंगे, जुम्मा एक ऐसा दिन है जो हफ्ते के दिनों का सरताज कहा जाता है, इसको बादशाह कहा जाता है। और इस दिन जो है ये फरमान दिया गया है कि जो हम फजर नमाज से लेकर एक्टिविटीज करते हैं, खासतौर पर अगर हम देखेंगे जब तहज्जुद अदा किया जाता है, तहज्जुद के बाद जो फजर नमाज अदा की जाती है, उसके बाद गुस्ल किया जाता है या कोई तिलावत कुरान पढ़ता है जिसमें सूरह काफ की तिलावत होती है, और उसके बाद जो है खुद को जो गुस्ल के बाद सफाई होती है, या हम कह सकते हैं कि चिर मली जाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरा दिन जो है सुबह से ही हम इसमें जुम्मे की जो एक्टिविटीज है उसमें लग जाते हैं। और ये बाज़ाब्ता ये हदीस में है कि जब जुम्मे की पहली अजान होती है, जब पहली अजान होगी तब ये फरमान आया है कि तमाम जो जिस काम में मसरूफ है वो काम उसी वक्त तर्क कर दे और जुम्मे मस्जिद की तरफ दौड़े, नमाज की तरफ दौड़े। क्योंकि जुम्मे के दिन अगर हम देखेंगे पहली अजान के बाद जो है अगर कोई कारोबार करता है तो बाज़ औकात ये कहा जाता है कि वो कारोबार फिर हराम बन जाता है तब तक के लिए जब तक जुम्मे की नमाज अदा नहीं होगी। तो अगर हम कैसे ये कहेंगे कि कोई अगर जानबूझकर जुम्मे की नमाज अदा नहीं करता है, छोड़ देता है, तो ये कहा जा सकता है कि वो नमाजी ने उसको उस चीज के लिए जो है काफी उसको हिसाब देना पड़ेगा। और साथ हम खाली जुम्मे की नमाज को लेकर बात नहीं करेंगे, जब भी जो भी 5 औकात नमाज होती है दिन में, तो हर वक्त कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी अजान हो तो उसके बाद फौरन नमाज के लिए जाए। लेकिन जुम्मे की नमाज, जुम्मे की जब अजान होती है उस वक्त ये फरमान आया है कि जब अजान होगी तभी हमें नमाज अपने काम तर्क करनी चाहिए, कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो, हमें दुनियाई काम उनको छोड़कर जो है हमें मस्जिद की तरफ दौड़ना चाहिए। और क्योंकि वहां पर फिर उसके बाद जो है जुम्मे का खुतबा होता है या जो मौज़िन होता है या जो हमारा खतीब होता है वो जब दर्स व तदरीस वहां पर पेश करता है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। तो ये जुम्मे के लिए फरमान है। और अगर कोई इंसान तर्क कर देता है, जानबूझ कर तर्क कर देता है और मुकम्मल हम कह सकते हैं कि 3 रोज यानी कि 3 जुम्मे मुसलसल वो तर्क कर देता है, तो उसके बाद ये फरमाना है कि उनको कलिमा तौबा नए से अदा करना है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जुम्मे की फजीलत बहुत ज्यादा है और हर किसी इंसान की यही कोशिश होनी चाहिए कि जब भी जुम्मे की नमाज अजान हो, पहली अजान जब जुम्मे की होती है तो उसके बाद हर कोई काम जो है वो तर्क करे और उसके बाद जो है पहले नमाज अदा करे और नमाज के बाद जो है फिर काम को तरजीह दे। क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात
करते हैं दीन इस्लाम में या हम अहादीस की बात करते हैं, तो अहादीस शरीफ सबसे पहला हदीस हम बयान करेंगे दीन इस्लाम, यानी कि दीन आसान है। और इसमें इस्लाम ने आपको ऐसी भी पाबंदियां नहीं रखी है कि आप पर कोई जुल्म हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो फर्ज है, जो फराइज है वो आपको अंजाम देने हैं, और जो फरमान है वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि यही फरमान है। अगर मुसलसल 3 रोज तक जो है जुम्मा अदा नहीं करेगा कोई जानबूझकर, तो उसको कलिमा तैयबा नए से अदा